Mishita and I welcome all the respected dignitaries, teachers, students to this one-day Sahaj Yoga workshop. I would request Sanjana Mittal ma'am to please come upon the stage along with all the respected guests for the lamp lighting ceremony. To please begin with the felicitation ceremony of our guests. Duja, PhD Clinical Nutrition, former Nutrition Manager at Fitness First India. Mr. Vinayak Narang, MBA at IT Business Management, Cybersecurity Consultant at Deloitte USI. Dr. Seerat Talwar, PhD Anthropology, former junior scientist at Sir Gangaram Hospital. I would request Sanjana ma'am to please come forward and speak a few words. My dear students over here, and the purpose of this one-day workshop that we have kept is that is spirituality, health, wellness and peace. All these words means a lot. This is a Sahaj Yoga, that is workshop, which is a journey to self-realization. When we talk of self-realization, today through workshop, we are going to learn that how through self-realization and the personal experiences are going to be shared by the guests that they are here with us. The students who are not able to excel, how they are going to share their experiences, that how through the self-realization process they are able to explore that is much more potential within themselves. I welcome Dr. Soumya Hinduja, who has consented to give her expertise on today's workshop, and she is a former nutrition manager at Fitness First India. We have with us Mr. Vinayak Narang. He's an MBA in IT Business Management, Cyber Security Consultant at US. And we have Dr. Seerat Talwar. She's again PhD in Anthropology, and she's a former junior scientist at Sir Gangaram Hospital, that is Delhi. And we also have with us Ms. Manjuri Korde. She's MA Economics and a former teacher over there, and all are very dedicated towards this yoga workshop. And dear students, I just want to tell you that all these things which are being given to you, they are very important. As far as today's present scenario is concerned, where we have lot of hassles, lot of tension, lot of stress is there. And this is how you can benefit from these kinds of the workshop. So without wasting any time, I call up on the stage Dr. Soumya Hinduja and her team members to kindly come and take the stage. Stage is all yours, and hand over to you, ma'am. This is called self-realization. Self-realization का मतलब है पूरे तरीके से आपको अपने बारे में जानकारी हासिल कर लेना. आपको अपने बारे में कोई भी जानकारी अभी तक नहीं है. आज हम अब आपको बहुत 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 इम्पॉर्टेंट एक हमारी इंडियन हिस्ट्री में जो रेवोल्यूशनरी प्रोसेस है, उस रेवोल्यूशनरी प्रोसेस की हम आपको जानकारी देंगे. इट वुड बी सम theoretical conversation and some practical. जो लोग बिल्कुल शांत हैं, जो लोग बिल्कुल न्यूट्रल स्टेट ऑफ माइंड से परसीव करेंगे, वो आज यहाँ से बहुत कुछ लेके जाएंगे. जो लोग शोर करेंगे, एक दूसरे के साथ बात करेंगे या सो रहे होंगे, वो यहाँ से कुछ भी नहीं लेके जाएंगे. और आज अगर आप यहाँ से ले गए कुछ भी, तो आपको पूरी लाइफ के लिए एक्सेलेंस मिलेगी. जिस भी एरिया में, जिस भी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हो,
चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में, चाहे आपके रिलेशनशिप्स में, चाहे आपके मनी मैटर्स में, चाहे आपके करियर में, चाहे आपके पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप में, आपके लाइफ के जिस भी एरिया में आप सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको उसी एरिया में ब्रेक थ्रू मिलेगा. ब्रेक थ्रू चाहिए? वी वॉन्ट टू लिसन फ्रॉम यू, यस या नो? ब्रेक थ्रू चाहिए? सबको चाहिए? प्लीज रेज योर हैंड जिसको ब्रेक थ्रू चाहिए. तो उसके लिए आज हमारी कंडीशन एक है कि आपको यू हैव टू बी साइलेंट. कैन वी बी साइलेंट फॉर हाफ एन आवर? परफेक्ट. इफ यू आर स्ट्रॉन्ग देन वी वुड बी साइलेंट. इफ यू आर वीक देन वी विल बी लाउड. आपको पता है कि यूक्रेन में इतना जो वॉर हो रहा है या ईरान में इतना जो वॉर हो रहा है, why do the wars happen outside? बाहर जंग क्यों होती है आप जानते हैं? क्योंकि कॉन्स्टेंटली कुछ लोगों के अंदर वही जंग चल रही है, अंदर लड़ाई चल रही है, अंदर जंग चल रही है. अगर अंदर जंग चलती रहेगी तो वो लड़ाई बाहर भी आएगी. जो अंदर से पूरे तरीके से शांत है, क्या वो बाहर किसी के साथ लड़ाई करेगा? Somebody will behave bad with another person only and only if they are disintegrated inside. उनके अंदर लड़ाई चल रही है, माइंड कुछ और बोल रहा है, हार्ट कुछ और बोल रहा है. होता है ऐसा? माइंड कुछ और बोलता है, हार्ट कुछ और बोलता है, फिर हमको एक की बात माननी पड़ती है और फिर कभी कभी हमको उसका नुकसान भी होता है, राइट? तो आज हम इंटीग्रेशन देखेंगे. इंटीग्रेशन क्या है? ठीक है, मैं एक बारी फिर से लास्ट टाइम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूं दैट वी हैव टू बी साइलेंट. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखते हैं ये सहज योग है क्या. जब हमारा बर्थ हुआ था तो हम एक नन्हे से बालक थे, छोटे बेबी थे हम, और हमारा यहाँ पे तालू भाग जो है, फॉन्टनील बोन एरिया, वो बहुत सॉफ्ट था. यहाँ पल्सेशन होती थी. अगर किसी ने छोटे बेबीज़ के साथ इंटरैक्ट किया है, अगर किसी ने छोटे बेबीज़ के साथ खेला है, उनको गोद में लिया है, तो उन्होंने देखा होगा यहाँ पे छोटे बेबीज़ का तालू भाग सॉफ्ट होता है, पल्सेशन होती है, थ्रॉबिंग होती है, लबडब होती है. क्या आप जानते हैं कि यहाँ पे पल्सेशन क्यों होती है? क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पे जो पल्सेशन होती है, यहाँ पे जो थ्रॉबिंग होती है, वो होती है कुंडलिनी शक्ति. आपके अंदर, सबके अंदर वो कुंडलिनी शक्ति है. हजारों साल पहले हमारी इंडियन माइथोलॉजी में कुंडलिनी शक्ति के बारे में बात हुई है, केवल बात हुई है. कुंडलिनी शक्ति की जागृति बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं थी 1970 से पहले. 1970 में सहज योगा मेडिटेशन के माध्यम से फाउंडर श्रीमाताजी निर्मला देवी ने ये इन्वेंशन किया, ये आविष्कार किया, जिससे कॉमन मैन की, आपकी, हमारी, कॉमन मैन की अपने घर गृहस्थी में रह के, अपने वर्क एनवायरनमेंट में रह के, अपनी नॉर्मल लाइफ लीड करते हुए आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए और आपके पास सुपर ह्यूमन अवेयरनेस आए, आप एक एनलाइटेंड ह्यूमन बीइंग बने. तो अगर हमें एनलाइटेंड ह्यूमन बीइंग बनना है, हम लोग अमीबा, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, अमीबा की स्टेट से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हम लोग बने. फिशेस बने, रेप्टाइल्स बने, मॉन्कीज बने, फिर एप्स बने, एप्स के बाद ह्यूमन बीइंग बने. लेकिन ह्यूमन बीइंग से भी, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, ह्यूमन क्राइसिस है बहुत ज़्यादा, सुख है, दुख है, तकलीफें हैं, परेशानियां हैं. एक चैलेंज से हम गो थ्रू करते हैं तो नया चैलेंज आ जाता है. अगर एक डिज़ायर हमारी फुलफिल हो जाती है तो पता चलता है कि अभी उसको तो एंजॉय किया नहीं, अभी नई डिज़ायर आ गई. तो ह्यूमन लेवल पे ह्यूमन क्राइसिस है बहुत ज़्यादा, राइट?
तो ह्यूमन लेवल से भी ऊपर का एक लेवल है, वो है एनलाइटेंड लेवल, एनलाइटेंड अवेयरनेस। आज हमारी कुंडलिनी शक्ति अगर जागृत हो जाती हैं तो हमारे पास एनलाइटेंड अवेयरनेस हो जाएगी। आपकी लाइफ के सारे एरियाज 360 डिग्री कवरेज मिलेगी आपको। आपकी लाइफ के सारे एरियाज आप खुद मास्टर कर पाएंगे, खुद करेक्ट कर पाएंगे बिना किसी की हेल्प के। लेकिन हमें देखना यह है, क्या आपको चाहिए कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए? अगर आपको चाहिए कि आपकी कुंडलिनी शक्ति आज जागृत हो जाए और हमें इन्हें एक्सपीरियंस करना है तो जागृति होगी। अगर आपको नहीं चाहिए, अगर आपको कोई पावरफुल ह्यूमन बीइंग नहीं बनना है, अगर आपको ऐसे ही रहना है जैसे आप हैं, तो आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होगी। तो जिसकी भी शुद्ध इच्छा होगी, ट्रू डिजायर होगी, आज उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होंगी। हम अब एक वीडियो प्ले कर रहे हैं जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी मदर कैसी दिखती हैं, हमारे बॉडी में कहां पर होती हैं वो, और उनका सिग्निफिकेंस क्या है। हम आप वी आर प्लेइंग इट वंस मोर, और हम एक बार कुछ स्लाइड्स पे रुक के थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये आप येलो कलर का कॉइल देख रहे हैं, 3.5 कॉइल्स। दिस इज योर मदर कुंडलिनी। यहाँ पे थी आपके फॉन्टेनिल बोन एरिया पे जब आपका बर्थ हुआ था। आपकी स्पाइनल कॉर्ड से, बैकबोन से ट्रैवल करके नीचे आके ट्रायंगुलर बोन में यहाँ पे सो रही हैं। शी इज द डोमिनेंट एनर्जी, शी इज योर डोमिनेंट एनर्जी, यहाँ पे आके सो रही हैं वो। एंड नाउ इन केस इफ यू रियली डेवलप दैट क्यूरियोसिटी टुडे कि हमारे अंदर की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए आज, तो आज वो जागृत होंगी। सो एंड ये ऊपर से आपके फॉन्टेनिल बोन एरिया से ट्रैवल करती हुई या आपकी स्पाइन पे ट्रैवल करती हुई और नीचे जाके सो जाती हैं। जैसे आपकी आईज होती हैं देखने के लिए, आपके और 5 सेंसेस होती हैं, आपका स्किन होता है टच करने के लिए। इसी तरह से आपकी जो मदर कुंडलिनी होती हैं वो आपको यूनिवर्सल डिवाइन पावर के साथ कनेक्ट करने के लिए होती हैं। सोच विचार नहीं करना है, हम बिल्कुल सोच विचार को अपने शांत कर देंगे। मात्र 2 से 3 मिनट के लिए हम कोई सोच विचार नहीं करेंगे, बिल्कुल शांत हो जाएंगे और मन ही मन केवल एक शुद्ध इच्छा करेंगे, कुंडलिनी माता, हे कुंडलिनी शक्ति, हमें आपका एक्सपीरियंस करना है, हमें आपका अनुभव करना है। आज अगर नहीं मिला तो हो सकता है इस लाइफ टाइम में ना मिले। आपकी सारी स्ट्रगल खत्म हो जाएगी and you will be very, very joyful people and highly excellent in all the areas of your life. हम आपको बताएंगे हमें excellence कैसे मिला हमारी spirituality के बाद in all the areas of our life.
बट देन आपको सोच विचार नहीं करना है. यू हैव टू बी क्वाइट, क्वाइट इनसाइड, क्वाइट आउटसाइड, एंड वी आर प्लेइंग द वीडियो. अब शांतिपूर्वक सब लोग बैठ जाएं और सब लोग मन में विश्वास रखें कि आप सबकी जागृति आज इस वक्त होने वाली है. मतलब ये कि अपने में दोष मत देखिए इस वक्त. कोई लोग सोचने लगते हैं मेरी कैसी जागृत होगी, मैंने ये पाप किया, मैंने वो पाप किया, और बताने वाले भी बताते रहते हैं कि तुमने ये पूर्व जन्म में कर्म करे, वो पूर्व जन्म में कर्म करे, उसके लिए इतना पैसा दो. ऐसी बेकार बकवास करते हैं लोग. जो ऐसा कहते हैं वही पापी है, समझ लीजिए. इस वक्त आप मेरे सामने कोई भी पापी नहीं. तो कृपया ये सोच लीजिए कि आपके अंदर जो भी दोष है, जो भी हुआ सो बीत गया, उसका अब विचार नहीं करना है. इस वक्त आप शांतिपूर्वक यही सोचिए कि मैं बिल्कुल दोषी नहीं. ऐसा सोचने से ये चक्र पकड़ता है. जब आप सोचते हैं कि आपके अंदर दोष है तो यहाँ पे ये चक्र पकड़ता है. इससे अनेक बीमारियाँ हो जाती, जिसे अंग्रेजी में स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, अनजाना कहते हैं, और तरह तरह के प्रकार इस एक चक्र के पकड़ने से होते हैं. तो हो गया सो बीत गया उस वक़्त के, अब तक क्यों आप लेकर बैठे. इस वक्त गलती उस वक्त ठीक करना चाहिए. तो अपने को कृपया माफ़ कर दीजिए. और दूसरे ये कि सबको आप एक तरह से पूरी तरह से माफ़ कर दीजिए. उनके बारे में सोचना भी गलत है, क्योंकि उससे भी सर दर्द होता है. अब ये बात सोचिए कि आप माफ़ करें या नहीं करें. आप करते क्या है? कुछ तो नहीं करते. क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते. लेकिन जब आप माफ़ नहीं करते तो अपने को छलते हैं, सताते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको सताया. इसलिए आप पूरे मन से इन सब को माफ़ कर दीजिए एक साथ. उसमें उनके बारे में सोचने की भी ज़रूरत है. बाकी आप लोग तो एक बड़े पवित्र देश में रह रहे हैं, तो अपने इस धरती माता की पवित्रता को देखते हुए और उसका अंदाज रखते हुए आप लोग कृपया दोनों हाथ मेरी ओर इस तरह से करें. सब लोग थोड़ा ऊपर इस तरह से, दोनों हाथ इस तरह से, क्योंकि ये जो 5 उंगलियां हैं और 6 और 7 और 5, 6 और 7 ये हमारे चक्रों के संकेत. और डॉक्टरी में इसमें इनको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एंडिंग्स माने जाते हैं. तो आप हाथ इस तरह से रखें. इस तरह से हाथ रखने पर अब आप मेरी ओर राइट हैंड रखें इस तरह से और सर झुका लें. और ये देखें कि ब्रह्मरंध्र से, जिसे कि हम तालू कहते हैं, जो कि एक स्निग्ध सा हिस्सा हमारे सर में बचपन में होता है, उसके ऊपर अधांध्र अपना लेफ्ट हैंड रखें, सर झुका के देखें और देखिए कि आप ही के अंदर से कुछ ठंडी या गर्म हवा जैसी चैतन्य की लहरियां आ रही हैं क्या. देखिए, आदि शंकराचार्य ने कहा था इसका वर्णन सलीलम सलीलम, ठंडी ठंडी हवा. आशा आपने जूते उतार लिए होंगे और जो लोग कुर्सियों पे बैठे हैं दोनों पैर अलग कर लें, बाकी सब ठीक है. अब देखिए आ रहा है क्या चैतन्य का प्रवाह, आप ही के सर से आ रहा है क्या. अब शंका मत करिए ठंडा या गर्म. अगर गर्म है तो इसका मतलब है कि आपने अपने को क्षमा नहीं की या दूसरों को क्षमा नहीं की. तो अभी कृपया आप क्षमा करिए. किसी किसी को दूर तक आता है, किसी को नज़दीक आता है, पर सर को छूते हुए हाथ मत रखिए, ऊपर. अब आप लेफ्ट हैंड मेरी ओर और फिर से सर झुका के राइट हैंड से देखें कि आपके तालू भाग से कुछ ठंडी या गरम गरम हवा आ रही है.
मुझे तो लगता है बहुतों को ये लगता है कि आप दोषी हैं, इसलिए भी गर्म हवा आ रही है। कृपया ये सोचना बंद करिए। अब एक बार, आखिरी बार, फिर से राइट हैंड मेरी ओर करें, सब लोग करें। और फिर सर झुका के लेफ्ट हैंड से देखें कि ठंडी हवा आ रही है क्या। बहुत से लोग बेकार बातें करते हैं कि कुंडलिनी जागरण से ये होता है, कुछ नहीं होता। आराम मिलता है, तकलीफ़ें जाती हैं, बीमारियां जाती हैं, मानसिक शांति मिलती है, अनेक विध शक्तियां जागृत होती हैं। ये सब ये इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको जागृति आती नहीं है। अब आप लोग दोनों हाथ सर की तरफ और एक प्रश्न पूछें, 3 बार एक प्रश्न पूछें कि माँ क्या ये परम चैतन्य है, क्या ये ब्रह्म चैतन्य है। मुझे माँ कहिए, श्री माता जी कहिए, मन में पूछे 3 बार प्रश्न। अब हाथ नीचे ले लीजिए। अब दोनों हाथ मेरी ओर करके इस तरह से, और मेरी ओर देखें और सोचिए नहीं, मेरी ओर देखिए और सोचिए नहीं। किसी किसी को नीचे से हवा आ रही हो तो वो नीचे से उठा के ऊपर ले जा सकते हैं, इस तरह से 2-3 बार करने से ऊपर आ जाएगी। मेरी ओर देखें, विचार से परे, माने विचार न करें, वो कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने मन से परे उठते हैं और आपके अंदर निर्विचार समाधि स्थापित हो गई। कितने जल्दी हो गई, इसका कारण है ये कलयुग का जोर। हर चीज़ यहाँ जल्दी होती है, पर जो चीज़ आसानी से मिलती है उसका महत्व हम लोग समझते हैं। इसलिए अब आप अंकुरित हो गए और इस अंकुर का आपको वृक्ष बनाना ही पड़ेगा। यह आपका कर्तव्य है अपने प्रति। और जब ये बनेगा तो आप भी हज़ारों को ठीक कर सकते हैं, यहाँ की दुर्दशा ठीक कर सकते हैं, सब में परिवर्तन ला सकते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। आप सबको मेरा अनंत आशीर्वाद, अनंत आशीर्वाद। लेफ्ट हैंड सामने की तरफ, राइट हैंड मदर अर्थ की तरफ। बिल्कुल साइलेंटली, पीसफुली, बिना सोच विचार के हम मदर अर्थ से हेल्प मांगेंगे। हे पृथ्वी माता, मन ही मन में बोलेंगे, हे पृथ्वी माता, कृपया करके आप मेरे ईड़ा नाड़ी के लेफ्ट सिंपैथेटिक चैनल के सारे इम्बैलेंसेस को आप एब्जॉर्ब कर लीजिए। मेरे सारी नेगेटिव थॉट्स को आप एब्जॉर्ब कर लीजिए। इन्हीं 5 एलिमेंट्स से हम बने हुए हैं, पंच तत्व महाभूत से हम बने हुए हैं। अगर इन 5 एलिमेंट्स की हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो ये हमारे बॉडी में इम्बैलेंसेस देते हैं, और बॉडी में इम्बैलेंसेस आते ही सबसे पहले सीरियस डिजीजेस होते हैं हमें। डॉक्टर्स आपसे कितने भी पैसे ले लेंगे, वो आपको लाइफ टाइम के लिए आपके डिजीज़ को रिवर्स नहीं कर सकते। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के साथ दवाइयाँ खाएंगे आप, लेकिन अगर आप इन्हीं 5 एलिमेंट्स की हेल्प लेकर अपने बॉडी को बैलेंस में ले आएंगे तो बिना किसी दवाई के, बिना किसी डॉक्टर की कंसल्टेशन के, बिना किसी मेडिकल थेरेपी के आप खुद को खुद ही ठीक कर सकते हैं एट ज़ीरो कॉस्ट। दिस मेडिटेशन इज फ्री ऑफ कॉस्ट वर्ल्ड वाइड। हे पृथ्वी माता, मेरी ईड़ा नाड़ी की लैक ऑफ मोटिवेशन को, लैक ऑफ इंस्पिरेशन को, इम्बैलेंसेस को आप एब्जॉर्ब कर लीजिए। जो लोग भी बिल्कुल शांत हैं उनके बॉडी में ये काम ऑलरेडी शुरू हो गया है। जो बातचीत कर रहे हैं या जो डिस्ट्रैक्टेड हैं, सोच विचार कर रहे हैं, उनके बॉडी में ये काम नहीं होगा। मदर अर्थ की तरफ जो हमने हाथ किया है उसको बिना सोच विचार के धीरे से ऊपर लेकर आएंगे।
हमारे लेफ्ट एल्बो को फोल्ड करके हम लेफ्ट हैंड को स्काई एलिमेंट की तरफ करेंगे। यहाँ पे हम स्काई एलिमेंट से हेल्प लेंगे। हे आकाश देवता, कृपया करके आप मेरे बॉडी के राइट सिंपैथेटिक चैनल के पिंगला नाड़ी की अत्यधिक गर्मी को, सोच विचार को, रिएक्शंस को, भविष्य की सभी चिंताओं को आप ग्रहण कर लीजिए। मेरे अंदर जितना भी गुस्सा है, जितने भी रिएक्शंस हैं, उनको आप एब्जॉर्ब कर लीजिए। हे आकाश देवता, मेरी पिंगला नाड़ी को आप बैलेंस कर दीजिए, संतुलन प्रदान कीजिए। दोनों हाथों को बीच में लेकर आएंगे। हे कुंडलिनी माता, मन ही मन में बोलेंगे, हे कुंडलिनी माता, आज हमारी शुद्ध इच्छा है कि आप हमारे अंदर जागृत हो जाइए। हे कुंडलिनी माता, हमें आपका अनुभव करना है, हमें आपको एक्सपीरियंस करना है। हे कुंडलिनी माता, आज आप हमारे अंदर जागृत हो जाइए। हे कुंडलिनी माता, आप कृपया करके हमें अपना संतुलन प्रदान करिए, बैलेंस प्रदान करिए। मैं पूर्ण दिल से, पूर्ण हृदय से सबको क्षमा करता हूँ। मैं पूर्ण दिल से, पूर्ण हृदय से अपने विचारों को क्षमा करता हूँ। मैं पूर्ण दिल से, पूर्ण हृदय से स्वयं को क्षमा करता हूँ। अगर आपने क्षमा कर दिया तो आपके फॉन्टेनिल बोन एरिया के ऊपर से वाइब्रेशंस आएंगी, थोड़ी कूलनेस आएगी। गर्दन को हल्का से झुकाएंगे। ह्यूमिलिटी में हम गर्दन को झुकाएंगे क्योंकि गॉड इज ग्रेट। हम भगवान को मानते हैं, इसीलिए हम विनम्रता से अपनी गर्दन को झुकाएंगे क्योंकि परमात्मा सर्वश्रेष्ठ हैं, वो सर्वव्यापी हैं। क्या हमारे फॉन्टेनिल बोन एरिया के ऊपर से कुछ भी आ रहा है? किसी को फॉन्टेनिल बोन एरिया के ऊपर से ठंडा फील हो रहा है? किसी को फॉन्टेनिल बोन एरिया के ऊपर से गर्म फील हो रहा है? दूसरे हाथ से देखेंगे। आप लोग हाथ उठाइए जिनको गर्म फील हो रहा है। तो अभी जैसे हमने वीडियो में सुना था, श्रीमाता जी फाउंडर ऑफ सहज योगा जो थी, संस्थापिका ऑफ सहज योगा, उन्होंने बोला अगर हम खुद को दोषी मानते हैं कि मुझसे ये गलती हो गई, मैंने ये गलती कर दी, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, अगर हम गिल्ट में रहते हैं तो हमारे फॉन्टेनिल बोन एरिया से गर्म वाइब्रेशंस आती हैं
और अगर हम क्षमा नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, बैड फ्लेवर होता है हमारे माउथ में, जिसकी वजह से हम बहुत ही स्टर्न ह्यूमन बीइंग्स बन जाते हैं, हमारी सॉफ्टनेस जो है वो ड्राई हो जाती है। तो अगर हम क्षमा नहीं करते हैं तो भी हमारे तालु भाग से गर्म वाइब्रेशंस आती हैं। अगर हम क्षमा कर देते हैं तो हमारे तालु भाग से ठंडी वाइब्रेशंस आती हैं। अब प्लीज ऑनेस्टली, बिल्कुल ऑनेस्टली, अगर आप, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जिस भी तरह का रिएक्शन दे रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, डिसइंटरेस्टेड हैं, झूठ मत बोलिए। आप सिर्फ हमें सच सच बता दीजिए कि अगर आपको एक्सपीरियंस हुआ ठंडा, गरम, पीसफुल, टिंकलिंग, वाइब्रेशंस, कुछ भी आपको फील हुआ तो आप अपना हैंड रेज करके बताइए। 15 minutes of daily meditation and see the wonders of life. जिसको गरम वाइब्रेशंस आए हाथ खड़ा करिए। ओके, सो अगर आप लोग क्षमा कर देंगे और सोच विचार करना बंद कर देंगे सिर्फ 5 मिनट्स के लिए और लेट्स से 2 मिनट्स के लिए, तो आपको ठंडा कूल वाइब्रेशंस आएगा। किसी को अगर ठंडे वाइब्रेशंस आए तो हाथ खड़ा करिए। ऑलराइट, सो वी कंग्रेचुलेट यू, आपको सेल्फ रियलाइजेशन मिल गया है। चाहे ठंडे वाइब्रेशंस आए चाहे गर्म वाइब्रेशंस आए, दोनों ही सिचुएशंस में आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई हैं। पर अगर आप पीसफुल रहेंगे तो आप इसको और डीपली एक्सपीरियंस कर पाएंगे। किसी को पीस फील हुआ कुछ क्षण के लिए? ये पीस आपको बेटा दुनिया में कहीं पे भी कितने भी पैसे खर्च के, कितनी भी लैविश, कितनी भी ज़्यादा सो कॉल्ड इलाइट लग्जरी अगर आपके डिस्पोजल पे होगी तो भी आपको ये पीस नहीं मिलेगा। ये पीस आपके अंदर है। ये पीस आपको आपकी कुंडलिनी माता की जागृति से, आपकी अपनी आत्मा की अनुभूति से मिलता है। और आप अगर 5 से 10 मिनट भी इस पीस को डेली एक्सपीरियंस कर लेंगे, इट विल बी वेरी वेरी वैल्यूएबल फॉर यू। एक बार दोनों हाथों को ऐसे लेकर आइए आमने सामने और देखिए कोई मैग्नेटिक फीलिंग है क्या। बिल्कुल शांति से अटेंशन रखिए कुंडलिनी माता पे कि कुंडलिनी माता आज आप हमारे अंदर जागृत हो जाओ। जैसे हम छोटे बेबी थे, हमारा बर्थ हुआ था और आप फॉन्टेनिल बोन एरिया पे थे, उसी तरह से आप हमारे फॉन्टेनिल बोन एरिया पे आ जाओ। वी वांट टू एक्सपीरियंस यू। बस इसी थॉट के साथ आप साइलेंट हो जाओ, बिल्कुल साइलेंट हो जाओ। किसी की बातों में नहीं आना। लोग डिस्ट्रैक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, खुद तो आगे निकल जाएंगे, आपको पीछे धकेल देंगे, तो इसीलिए किसी की बातों में नहीं आना। जस्ट बी कॉन्शियस अबाउट योर सेल्फ। इट्स सेल्फ रियलाइजेशन, इट्स जस्ट फॉर यू। एक ह्यूमन बीइंग के लिए उसके अपने से ज़्यादा प्रेशियस कुछ नहीं होता। कितना भी रिलेशनशिप में हो आप, आपके मम्मी पापा हों, आपके सिबलिंग्स हों, आपके रिलेशनशिप्स हों, पर आपके लिए सेल्फ से ज़्यादा, आपके अपने से ज़्यादा प्रेशियस कुछ भी नहीं है। यू हैव अ रिलेशनशिप विद यू। यू हैव टू एस्टैब्लिश दिस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद यू। जब तक आप बातचीत करते रहोगे, जब तक आप शोर मचाओगे, जब तक आप साइलेंट नहीं होगे, यू नॉट डेवलप दिस रिलेशनशिप विद यू। You would not even get to know आपके बॉडी में क्या हो रहा है। You don't know anything about yourself. दोनों हाथों के बीच में कुछ मैग्नेटिक फीलिंग आ रही है। ये मैग्नेटिक फीलिंग क्या वैसे कभी आई थी? ये मैग्नेटिक फीलिंग आपकी कुंडलिनी शक्ति की जागृति के बिना नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। ओके, अब दो चीज़ें। एक तो हम आपको ये बताएंगे कि हमें अपनी पर्सनल लाइफ में सहज योगा का बेनिफिट कैसे मिला, राइट? और दूसरा हम आपको ये बताएंगे कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती हैं तो हाउ डज इट शी वर्क्स इनसाइड योर बॉडी।
I was just a graduate and a homemaker. When I was introduced to this concept of Sahaj Yoga meditation, I had a very neutral state of mind. I was not negative about it, but I was not even positive about it. The only difference between you and me was that few backbenchers who are just not paying attention, I just paid attention. That's it. I was not positive about it. But then I said to myself, what's the harm? It's free of cost. Why cannot I try it for next 3 months at least? कर सकते हैं ना कोई भी चीज को 3 months के लिए ट्राई हम लोग नुकसान तो नहीं कर रही ना आपको आपसे फी तो नहीं चार्ज हो रही ना so because it is unpaid service so that's why we don't respect this is the reason because we have not paid for this workshop but trust me आप जो हवा जो ब्रीथ करते हो ना जो आपका involuntary respiration process है that is also free of cost everything whatever you need in your life as the primary requirement to run this body smoothly for your metabolism is free of cost. If you really care for somebody, that is free of cost. You don't have to pay for it. If your mother cares for you, if your parents care for you, if your teachers care for you, you don't pay them anything. That entire batch, the entire classroom has made the payment for that course or for that particular a study. But at the same time, teacher would care only about 5 students or 10 students. And she would only care about those students who care for themselves actually. She would not care about others. So all these things which are actually very precious to us, they're very close to us, they're very innate to us, are free of cost. आप लोगों को कहीं पर भी ये नहीं मिलेगा जो आज आपको यहाँ पर मिलेगा. I was just a homemaker, I was mother of 2 children, and somehow I was introduced to this concept of spirituality. I decided to give it a trial. I just used to sit for my random meditations for 10 to 15 minutes every single day. And in my meditation, somehow I developed this thought that I want to continue with my studies and be a professional woman from now onwards. This thought somehow culminated. And it started working. Just one thought towards the end of my meditation, it just manifested. And I'll tell you how it got manifested through the awakening of my mother Kundalini. I started pursuing my masters. Then during my meditations, I used to behave like a child and ask from my mother Kundalini that I want to be the top performer of my batch. And suddenly I could see that each and every semester I was passing above 90%, I was a top performer. Towards the end of 2 years, I could see myself as the top performer and nobody even close to me. And thereafter, I decided to work in an environment where I can get the maximum exposure to just to be the master in my profession. I got the same kind of global experiences in hospital, in the worldwide conferences. I was allocated with 677 gold medals in international conferences, which had roughly around 1,500 participation from across the globe. Everything, and every time I used to get, and for my job also, because I worked as a nutrition manager with Fitness First All India. So 30 times back to back, I was celebrated as a top performer, and everybody used to wonder what does she do actually, and nobody used to even stand, we can't say at par, but nobody used to stand even close. There was a huge gap between the top performer and the second best performer. And trust me guys, I never did anything. I used to just sit in my meditation, ask for my balance, and if there was any problem, any challenge, I used to surrender it to my mother Kundalini.
कुंडलिनी माता आप देख लेना बस. And with a very, very relaxed state of mind, in a very, very joyful state, I could see everything working out so beautifully, so nicely, just because of this meditation practice. And this is not the end, it's an ongoing process. Even today, I find that I get so many breakthroughs in each and every. I've been practicing this meditation for 10 years. My son is 19 and he wanted to crack IIM Indore 2 years ago. So that batch was studying from home because of COVID. The classes were online. They didn't allow them to go through those board exams as well. Board exams got cancelled, right? And now he wanted to crack IIM Indore, and this chap is practicing meditation for past 10 years. This 19 years old is practicing meditation since he was 9, right? But then he knows everything, but then as you guys are, you are so tender, you are so playful, you're a little bit naughty as well. So similarly, the disciplinary issues were a little bit there. And now here he decides that I want to just meditate and allow it to work out. So for just 1.5 months, for 45 days, he didn't study in the entire 12th standard, honestly speaking. He didn't study at all in the entire 12th standard. He lost his interest because of the online classes and COVID and all that. So 1.5 months, he just meditated morning, evening, and he sat for his studies again online crash course and morning evening studies. And towards the end of 1.5 months, when he appeared for his IIM Indore, to our surprise, he stood 7th in all India. That was mind-blowing and remarkable achievement. That was unbelievable for all of us. Unbelievable. Next year again, he was asked to go YouTube live. He was asked to live stream that on the YouTube, that how did you crack your IIM Indore All India rank 7? And he had no words, he was short of words. He clearly claimed it to me. Mama, ये तो मेरे meditation से हुआ है, ये तो कुंडलिनी माता ने किया है, तो मैं क्या बताऊं उनको कि कैसे हुआ है? I had no words. So, ये हमारी बेटा अभी we have Vinayak Narang as well. He's 25 and he's also working in a leading role. He would also share his experience with you. And we have Seerat Talwar, she's PhD microbiologist. We have Mayuri Kode, she's MA Economics. So all of us have our breakthroughs, and each and every Sahaj Yoga practitioner who are in the world. At this time, we are celebrating this festival. We have come to see you because we are celebrating this festival, and we have immense number of our friends from overseas, from all over the globe, whosoever is practicing meditation have come to India now, just to celebrate this festival. Okay, so maybe our friends will share their experiences. 5 minutes from now, let me tell you how does this work. We have 7 chakras, right? So you know your digestion, you know your respiration, you know your other metabolic systems inside your body. Maybe if some of you have learned science till your 10th standard, or if you had science in your 11th or 12th standard, you know the anatomy and physiology as well. So you have everything, right? You have some basic knowledge. But then there is one more system which is even inside of your metabolic system, which you cannot see with this human eyes, but you can feel it inside. You can feel it inside your own self. All your chakras, you can feel them on your hands.
if you have a very sensitive nervous system, or if you're practicing your meditation diligently for 10 minutes every single day morning, 10 minutes every single day evening, then you can feel your own central nervous system, you can feel your right sympathetic nervous system, you can feel your left sympathetic nervous system, and you can master your autonomous nervous system. This is very, very, very scientific. It's something beyond science, we call it meta science. तो आप ऐसे मत समझना कि आप यहाँ पे केवल जयकारा लगाने के लिए बैठे हुए हो. इट्स नॉट दैट. ओके, सो आपकी कुंडलिनी शक्ति जब ये जागृत होती हैं, दिस इज योर सेकंड चक्रा, वी कॉल इट स्वादिष्ठान चक्र. दिस स्वादिष्ठान चक्र गिव्स यू क्रिएटिविटी. आपके दिस इज योर स्वादिष्ठान चक्र, दिस गिव्स यू क्रिएटिविटी. आपका ये चक्र अगर क्लिंज हो जाए, आपकी मदर कुंडलिनी राइज करें एवरी सिंगल डे, अगर आपका ये चक्र क्लियर हो जाए, यू बिकम हाईली क्रिएटिव इन योर एरियाज. आपके जो फ्रेंड्स होंगे उसी काम को किसी पुराने या बोरिंग तरीके से कर रहे होंगे, और आप उसी काम को बहुत ही इंटरेस्टिंग और नए तरीके से कर रहे होंगे. एंड दिस इज वाई यू गेट रिनाउंड, एंड दिस इज वाई यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट, एंड दिस इज वाई यू बिकम मोर डायनेमिक. अगर किसी को डायबिटीज मलाइटिस है, अगर किसी की किडनीज खराब है, अगर किसी का लिवर खराब है, तो ये चक्र हमारा जो है ये बैडली कंटामिनेटेड होता है, इम्बैलेंस में होता है ये चक्र, स्वादिष्ठान चक्र. दिस इज वाई वी गेट दीज डिजीजेस. इन केस इफ दिस चक्र कैन बी करेक्टेड वाया मेडिटेशन प्रैक्टिस. अगर घर पे फैमिली में कोई भी फैमिली मेंबर है जिनको डायबिटीज मेलाइटिस है, जिनका लिवर हेल्थ ठीक नहीं है, जिनके किडनीज खराब है, जिनका पैंक्रियाज खराब है, then we have to correct this chakra, swadhisthana chakra, and this disease can be reversed without even taking a single medication. So I told you one advantage also and one disease ka reversal as well. So two things I've told you, and this is just bare minimum which we are sharing with you here, because we cannot share everything in the just one session. All right. So when this mother kundalini, she rises, she's sleeping here in the tailbone. आप लोगों को आज जिनको भी वाइब्रेशंस आए, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है. योर सीड हैज़ ऑलरेडी जर्मिनेटेड. अगर आप लोग 10 मिनट के लिए रोज घर पे ध्यान करेंगे, तो कभी भी आपका ये सीड जो है वो छोटा सा प्लांट या सैपलिंग बनेगा, लेकिन ये डाई नहीं करेगा. सो यू हैव टू मेडिटेट एवरी सिंगल डे फॉर 10 मिनट्स जस्ट टू कीप इट अवेकेंड. सो इसके बाद आपकी मदर कुंडलिनी जो है या स्वादिष्ठान चक्र से राइज करती हैं. दिस इज सेंटर में जो है, दिस इज योर नाभि चक्र, नेवल सेंटर. अगर किसी को पैसों की बहुत दिक्कत है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, क्लेंस योर नाभि चक्र एंड योर फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट्स गेटिंग डिसॉल्व्ड. you can start getting new breakthroughs in this area. अगर किसी के घर में फैमिली में किसी के घुटने खराब है, पेरेंट्स के, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स जिनके घुटने खराब हो जाते हैं, अगर आप लोग उनको, आपने देखा होगा सर्जरी भी कराने के बाद सो कॉल्ड सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होते हैं, तभी भी उनको चलने में प्रॉब्लम रहता है, पेन रहता है, कुछ ना कुछ होता है, नाभि चक्र का प्रॉब्लम है. अगर किसी के घर में डोमेस्टिक वायलेंस है, कोई डिस्प्यूट्स होते हैं, देन अगेन इट्स नाभि चक्र. इफ वी कैन क्लिंस द नाभि चक्र, ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड दैट द एंटायर एनवायरनमेंट ऑफ द हाउस has become congenial and you develop very cordial relationships with each other. एसिडिटी का किसी को प्रॉब्लम है, रोज एंटासिड्स अगर लेते हैं, तो अगर मदर कुंडलिनी राइज करके नाभि चक्र आपका क्लेंस कर देती हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके एंटासिड्स छूट जाते हैं. So we have medical significance as well, we have personal significance as well, we have 360-degree areas coverage. आपको coverage किस area में चाहिए देखना ये है, आपकी प्रायोरिटी क्या है. दूसरा, क्या आप 10 मिनट के लिए रोज घर पे ध्यान कर सकते हैं. These are the two conditions. We have these two requisites. चाहिए तो ही मिलेगा, और अगर चाहिए तो 10 या 15 मिनट के लिए घर पे ध्यान करना पड़ेगा. These are the two prerequisites to it. इसके बाद आपकी मदर कुंडलिनी जब राइज करती हैं, शी रीचेस योर हार्ट सेंटर.
सो अगर हमको हमारे पेरेंट्स के साथ या फिर हमारे और रिलेशनशिप्स के साथ अगर हमारे रिलेशनशिप स्मूथ नहीं हैं, अगर हमारे डिसएग्रीमेंट्स हैं, अगर हमारी नाराज़गी है, तो वी नीड टू क्लेंज आवर हार्ट चक्रा. फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर तभी होता है जब उनका हार्ट चक्रा पकड़ा होता है. इफ़ यू कैन समहाउ रिवर्स दिस कंडीशन, ऑटोमेटिकली यू बिकम हाईली कॉन्फिडेंट पीपल. जो भी कॉन्फिडेंट होता है वो जब जाके किसी सीट पे बैठ के इंटरव्यू में बात करता है या फिर आप किसी भी तरह की कोई भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, यू एक्चुअली रिगार्डेड, यू कंसिडर्ड, पीपल विल सी योर कॉन्फिडेंस. बंदे में कॉन्फिडेंस है, इतना कॉन्फिडेंस इसके अंदर आया कैसे. यूजुअली कॉन्फिडेंस जो हमारा नॉर्मल लाइफ का होता है वो वेवर करता रहता है. इट माइट बी देयर, इट माइट नॉट बी देयर, इट्स वेरी सिचुएशनल and it's very mental. But this confidence is the confidence that comes from inside because of your awakening of Mother Kundalini, because of your enlightened spirit that's shining bright in your heart. यही आपका, अगर जेलसी बहुत है, अगेन दिस हार्ट चक्रा नीड्स टू बी क्लेंस्ड. इसके बाद फिर ये विशुद्धि चक्र है, ब्लू वाला. दिस इज फॉर योर कम्युनिकेशन स्किल्स. आपकी कितना भी स्कोर अच्छा आ जाए, आप कितना भी अपने डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशन ले लो, बट इफ यू डोंट हैव दैट पावर टू कम्युनिकेट, यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ नाइसली. आजकल एक्सप्रेस करना अपने आप को बहुत ज़रूरी है. सो दिस विशुद्धि चक्र, इफ दिस मदर कुंडलिनी दिस क्लियर्स दिस विशुद्धि चक्र, ऑटोमेटिकली you develop excellent communication skills. And at the same time, it gives you a beautiful facial expression. अगर कुछ लोगों का फेस जो है वो स्ट्रेस की वजह से, मेडिकेशंस की वजह से, या फिर रात भर जागने की, पढ़ाई करने की वजह से, या किसी और भी बैड हैबिट की वजह से फेस खराब होने लग जाता है, राइट. एंड फिर वो आप बाहर से अपनी कोशिश करते हैं कि इम्प्रूव हो जाए, कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए, बाहर से एक्सटर्नल एप्लीकेशंस आप लोग करते हैं, बट इट वोंट वर्क. अगेन एवरीथिंग दैट वुड वर्क इज वेरी वेरी टेम्पररी एंड इट हैज़ अ ह्यूज कॉस्ट associated with it as well. So अगर आपका विशुद्धि चक्र improve हो जाए, automatically you develop a very beautiful and a very expressive and a very nice face, right? विशुद्धि चक्र के ऊपर ये हमारा जो ऑप्टिक काइज्मा है, this is what is called as आज्ञा चक्र और ऑप्टिक काइज्मा. अब एक छोटा सा एक और रिक्वायरमेंट है हमारे सहज योगा मेडिटेशन के वर्क करने का, दैट वी हैव टू बी फॉरगिवफुल. हमको क्षमा भाव में थोड़ा होना होता है, राइट? तो अगर आप क्षमा नहीं करते हैं तो आपके बॉडी के और आपके ब्रेन के बहुत सारे सेल्स डैमेज हो जाते हैं, जो कि सेल्स आपको अदरवाइज बहुत सारा पावर और बहुत सारी बेनिफिट दे सकते हैं. लेकिन अगर आपके ये सेल्स, अगर आप क्षमा भाव में रहते हैं, आप क्षमा कर देते हैं एंड यू सरेंडर इट टू मदर कुंडलिनी. ऐसा नहीं है कि क्षमा करने के बाद हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे उसने परेशान किया, नाउ ही शुड बी पनिश्ड और शी शुड बी पनिश्ड. ऐसा नहीं हम बोल सकते हैं. बट एट द सेम टाइम, इफ द अदर पर्सन, आइदर द अदर पर्सन विल स्टॉप इरिटेटिंग यू एंड स्टॉप बॉदरिंग you. And if they don't do, then automatically, without you doing even zero thing about it, you doing nothing about it, they get punished. But we don't have to feel that bad thought in our heart or in our mind that they should get punished, because we have automatically become forgiveful. हमारे अंदर forgiveness आ गई है, right? This forgiveness is very very important tool nowadays. हमारी आजकल की पावर्स ऐसी नहीं होती कि हमारे पास कुछ गैजेट्स होने चाहिए या हमारे पास एक अपना पर्सनल राइफल होना चाहिए. दिस इज नॉट पावर. या हमारे पास बहुत मोटा बैंक बैलेंस होना चाहिए. दीज आर नॉट पावर्स. इफ यू कैन बी फॉरगिविंग, दैट इज वेरी वेरी स्ट्रेंथनिंग, क्योंकि आपके बॉडी का एक भी सेल डैमेज नहीं होगा व्हेन यू आर फॉरगिविंग. यू आर हाईली रिजुनोवेटेड ऑल द टाइम. And your strength is immense strength inside your body. और आपकी कुंडलिनी माता, जैसे कि आपके बर्थ के टाइम पे तालू भाग पे थी, यहाँ पे फॉन्टेनील बोन एरिया पे,
she is also easily able to rise above this Agya chakra, this optic chiasma, and reach your limbic area. यहाँ पे ही थी वो जब आपका बर्थ हुआ था. And this is where she wants to come back. She wants to come back here. You become a challenge here. Because either you're not aware of this fact that your mother Kundalini wants to come back at the fontanelle bone area, or if you are aware, you don't want to work it out. अगर एक ड्रीम जॉब चाहिए तो जब तक नहीं चाहिए, क्या वो मिलेगी? नहीं मिलेगी ना, तभी मिलेगी जब चाहिए. और फिर अगर चाहिए भी, अगर ये थॉट भी आ गया कि मुझे ये ड्रीम जॉब चाहिए, अगर चाहिए भी तो भी उसके लिए वर्क तो करना पड़ेगा ना. सो सिमिलरली लाइकवाइज आपके एक एरिया में आपको एक्सेलेंस मिल जाती है तो भी उसके बाद भी कुछ 5 एरियाज और रह जाते हैं, राइट? यू कैन नॉट बी एक्सेलेंट इन ऑल द एरियाज ऑफ योर लाइफ एट द सेम टाइम. So if you want to be excellent in all the areas of your life at the same time, in the moment, then you have to work it out through the awakening of Mother Kundalini. It might look spiritual, it might look old or antique, but it's very, very, very modern. It's very, very, very innate. आपके अंदर ही है ये सब कुछ भी हम आपको बाहर से नहीं दे रहे हैं. थक जाओगे जिंदगी की जद्दोजहद में कि एक चीज मिल गई, अभी उसको एंजॉय भी नहीं किया, पता चला दूसरी आफत आ गई कोई. तो इसीलिए अगर आपकी मदर कुंडलिनी अवेकनिंग हो जाए और आप डेली 10-15 मिनट का ध्यान आप कर पाओ, आपको इसके बारे में जो भी और बहुत कुछ सीखना हो. अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की. हमने आपसे शुरू में सेशन में बोला था माइंड कुछ और बोलता है, हार्ट कुछ और बोलता है, और अंदर ही लड़ाई चलती रहती है. अंदर लड़ाई चलती है तो हम पीसफुल नहीं होते, और अगर हम पीसफुल नहीं होते तो हम बाहर भी दूसरे के साथ डिसएग्रीमेंट करने लग जाते हैं, आर्ग्यू करते हैं. वी आर्ग्यू विद आवर पेरेंट्स, वी आर्ग्यू विद आवर टीचर्स, वी आर्ग्यू विद आवर फ्रेंड्स. व्हाई? बिकॉज देयर इज डिसइंटीग्रेशन इनसाइड. अगर हमारे अंदर डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा तो हम किसी से भी आर्ग्यू नहीं करेंगे. वंस यू फॉरगिव and your mother kundalini rises above this optic charisma and she reaches at the top of your head, you automatically become integrated human being. Your heart and your brain becomes one. जो आपका दिल बोलेगा वही आपका ब्रेन बोलेगा, जो आपका ब्रेन बोलेगा वही आपका दिल बोलेगा. अंदर लड़ाई खत्म. जब आपका हार्ट और आपका ब्रेन दोनों एक ही बात बोल रहे हैं तो अंदर लड़ाई खत्म. जिसके अंदर लड़ाई नहीं होती वो बाहर भी लड़ाई नहीं करता. बाहर लड़ाई कौन करता है? जिसके अंदर. तो अब आगे से कोई लड़ाई करे तो उससे लड़ना मत, अपने आप को बोलना भैया इसके अंदर लड़ाई चल रही है, तू मत पड़ उसकी लड़ाई में. ठीक है? किसी की बातों में तो नहीं आओगे. हाँ, तो क्विकली गिव योरसेल्फ एटलीस्ट 30 seconds, और यू कैन गिव योरसेल्फ 1 minute टू अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ अनदर पर्सन ऑल्सो. 30 seconds से 1 minute देना अपने आप को. ठीक है? कोई लाउड है, कोई अग्रेसिव है, कोई एंग्री है, जस्ट अपने आप को दो 30 seconds से 1 minute एंड फिर गेज इट आउट. ओ, इसका हार्ट और इसके ब्रेन में लड़ाई चल रही है. डिसइंटीग्रेशन. ए पर्सन पीसफुल नहीं है, सो ही इज फाइटिंग विद इन हिमसेल्फ, सो यू नीड नॉट फाइट हिम. मेन थिंग इज योर एक्सपीरियंस. अब एक्सपीरियंस के लिए आपको क्या करना है? एक्सपीरियंस के लिए आपको राइट हैंड सामने रखना है, लेफ्ट हैंड मदर अर्थ की तरफ करना है, और आपको 2 मिनट के लिए मदर अर्थ को प्रे करना है कि मेरी बॉडी के लेफ्ट सिंपैथेटिक चैनल के सारे जितने भी इम्बैलेंसेस हैं आप ग्रहण कर लो. हो जाएगा ये 2 मिनट में. इसके बाद फिर आप अपना राइट हैंड सामने की तरफ लेंगे और आपका लेफ्ट एल्बो फोल्ड करके आप अपना स्काई एलिमेंट की तरफ करोगे, और यहाँ पे आप अपने स्काई एलिमेंट से हेल्प मांगोगे कि हमारे बॉडी के राइट सिंपैथेटिक चैनल में जितनी भी हीट है, ये हीट हमें इन्फ्लेमेशन देती है, ये हीट हमें आर्थराइटिस देती है, ये हीट हमें हार्ट अटैक देती है, ये हीट हमें हाई ब्लड प्रेशर देती है, ये हीट हमें बहुत सारी बीमारियां देती है.
So if you can get rid of this heat on the daily basis, it will not accumulate inside your body and become a health condition. If you cannot get rid of this disease on the regular basis, it might expand and become anything in the future, right? तो ये आपको ऐसे हाथ करना है और आपको अपनी मदर कुंडलिनी को भी प्रे करना है, उस काय एलिमेंट को भी प्रे करना है कि मेरे राइट सिंपैथेटिक चैनल के सारे गुस्से को, रिएक्शंस को, हॉट वाइब्रेशंस को, इम्बैलेंसेस को आप एब्जॉर्ब कर लीजिए. स्काई एलिमेंट को प्रेयर करना है. हो जाएगा. And pause here for 2 minutes. For every prayer you have to pause for 2 minutes. 2 मिनट के लिए आपको रुकना है हर प्रेयर में. और उस टाइम पे आपको सोचना नहीं है. If you don't think, it works brilliantly and it works at a fast pace. अगर आप सोच रहे हो, then it will take very long time and it will be a very gradual process. इसके बाद आपको दोनों हाथ ऐसे बीच में लेकर आना है and आपको अपनी कुंडलिनी माता को you have to pay homage to her, you have to be humble to her and you have to ask her to awaken, to arise. कुंडलिनी माता कृपया करके आप हमारे अंदर जागृत हो जाइए. कुंडलिनी माता कृपया करके आप हमें संतुलन प्रदान करिए. मैं क्षमा करता हूँ. मैं पूर्ण दिल से सबको और स्वयं को क्षमा करता हूँ. फिर उसके बाद अगर आपकी कोई पर्सनल इश्यूज हो, कोई आपका पर्सनल एजेंडा हो, तो आप पहले इस प्रेयर में भी आप 2 मिनट रुकेंगे. फिर आप अपनी कुंडलिनी माता को अपना वो पर्सनल एजेंडा उस दिन का, उस टाइम का आप बता दीजिए. दिस इज समथिंग विच इज बॉदरिंग मी, काइंडली लुक आफ्टर माई मदर कुंडलिनी. 2 चीज़ों की आपको बहुत रिस्पेक्ट करनी है. आपकी अपनी आत्मा जो आपकी स्पिरिट है और आपकी अंदर कुंडलिनी माता, इन 2 चीज़ों की आपको बहुत 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 ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी है. So that's it from our side. All right. So that's it from our side. So Vinayak will share his personal experience with you. मैं 2001 में आया था, 4-5 साल का था उस टाइम. We had no idea what is सहयोग, what is meditation. My parents came in this meditation. अब पता है बचपन में जो मम्मी पापा करते हैं उनके साथ ही हम चलते हैं, तो वहीं से स्टार्ट हुई थी ये जर्नी. बट उस टाइम पे तो कुछ समझ नहीं आता. जब आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे होते हो, 10th में होते हो, 12th में हो, तब आपको इसको बेनिफिट्स रियलाइज़ होते हैं, टैंजिबल बेनिफिट्स महसूस होते हैं. कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत इंप्रूव होती है. फोकस एकदम स्टिल हो जाता है कि जो आप कर रहे हो उसमें आपको एकदम फोकस के साथ कर सकते हो, राइट. और अभी तो आप जैसे कॉलेज में हो, अभी तो एक इंस्टीट्यूशन का पार्ट हो, पर अगला स्टेप क्या, प्लेसमेंट्स, जॉब्स, करियर, दुख स्टार्ट हो जाएगी जब बाहर जाओगे. अभी तो पेरेंट्स साथ दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, फीस दे रहे हैं, बट व्हाट नेक्स्ट. अपने पैरों पे तो खड़ा होना है ना सबको. उसके लिए अब आपकी जर्नी स्टार्ट यहीं से शुरू हो जाएगी. जैसे आपकी एजुकेशन कंप्लीट होगी, यू विल अप्लाई फॉर प्लेसमेंट्स, CV, GD, कितने राउंड्स हैं. गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट सेक्टर है, राउंड्स पे राउंड्स हैं. सिलेक्शन क्राइटेरिया टफ पे टफ हो रहा है. डिमांड सप्लाई का खेल है, सबको पता है. आप मेडिटेशन करेंगे, आपको खुद में बेनिफिट ऐसा महसूस होगा, यू विल स्टे फोकस्ड. होता क्या, या तो पास्ट का सोचते रहेंगे या फ्यूचर का सोचेंगे. प्रेजेंट में नहीं रह पाते तो पता भी नहीं लगता कि करना क्या नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दिस. जिस भी कोर्स में, चाहे MBA या जो भी आप, व्हाट इज योर स्पेशलाइजेशन, डिपेंडिंग ऑन दैट, आपको अभी तो होगा कुछ ये वाला मुझे नेक्स्ट स्टेप्स हैं, बट जैसे जैसे यू विल गेट क्लोजर टू योर गोल, योर माइंड विल स्टार्ट वेवरिंग. ये करना है यार, इधर भी फॉर्म भर देते हैं, इधर भी फॉर्म भर देते हैं, 10 जगह अप्लाई करते हैं, ह्यूमन टेंडेंसी है. बट आपके अंदर की डिज़ायर आपको नहीं पता ना कि आप करना क्या चाहते हो. वहीं स्टॉप ना हो जाए. एक हम कहते हैं ना, जब व्हेन वी आर कनेक्टेड विद द पावर दैट हैज क्रिएटेड अस, द डिवाइन पावर, आपको अंदर से गाइडेंस मिलती है. अंतरात्मा हम बोलते हैं ना, आवाज़ आ रही है यार ये करना है मुझे, मेरा मन ये कह रहा है करने को, ट्राई करते हैं. तो आप सुबह मेडिटेशन करिए, शाम को मेडिटेशन करिए और अपने गोल पे फोकस होकर वर्क करिए. मेडिटेशन केमिस्ट्री में कहते हैं कैटलिस्ट होता है. अगर एक प्रोसेस 10 मिनट में कैटलिस्ट डाल दो तो वो 2 मिनट में भी हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन. तो मेडिटेशन एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा आपकी लाइफ में. फोकस रहोगे, अंदर से गाइडेंस मिलेगी, हाँ आज मैंने ये करना है, आज मैंने वो करना है, इधर अप्लाई किया, इसके लिए टू, जैसे मैं आपने एग्जाम्पल दिया, इनका बेटे ने IIM क्रैक किया. वो एक ऐसा फेज था 12th क्लास का जब कोविड था, प्रॉब्लम्स थी, फिर भी इंसान ने कर लिया. अब मेरे केस में बताऊँ, आई हैव डन BSc केमिस्ट्री ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी.
Sri Venkateswara College. But I landed up in the field of cyber security. That is a very core field of computer science. But how? आफ्टर केमिस्ट्री 12th के बाद तो मार्क्स आ गए, वेंकी में एडमिशन मिल गया, लाइफ सॉर्ट है, लगा, हो गया, डन. बट व्हाट नेक्स्ट? थर्ड ईयर कंप्लीट होता है, लग गई बैंड, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है, सीवी बनाओ, इधर एप्लीकेशन करो, उधर करो. फिर धीरे धीरे करके व्हेन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट वेरी डिलीजेंटली, अंदर से ऑप्शन सामने आने लग जाते हैं. वो कहते हैं ना हिंदी में कि जब किसी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात मिलके काम करती हैं. तो वही सीन होता है, गाइडेंस मिलती है, आपका एक ऑरा ऐसा क्रिएट होता है आपको. अब आप खुद सोचो, केमिस्ट्री नॉर्थ डायरेक्शन प्योर केमिस्ट्री, और एक साउथ डायरेक्शन कोर कंप्यूटर साइंस में साइबर सिक्योरिटी. कैसे ट्रांजिशन है, क्या डिफिकल्टीज आई, वो एक अलग स्टोरी है. बट एक साथ रहता है ऊपर वाले का, डायरेक्शन रहती है, बैलेंस्ड रहते हो. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर अंदर से बैलेंस्ड रहोगे ना, तो नथिंग, आसपास जो भी हो रहा हो, you will be guided, you will be focused, and you will stay on that path that you have chosen for yourself, or I can say that the Almighty has chosen for you. So that way, you know, present में रहो, balanced रहो, meditation experience करके देखो. See, मैं बोल सकता हूँ, मेरे लिए बोलना आसान है क्योंकि मैं कर चुका हूँ, बट अगर आप ट्राई करके देखो, कुछ भी होता है, किसी नई ट्यूशन भी ज्वाइन करते हो, फ्री ट्रायल क्लास तो लिख देते हैं, ट्राई तो करते ही हो फीस देने से पहले. यहाँ तो फीस भी नहीं है. बट इसका ये मतलब नहीं कि वैल्यू मत करो. माँ प्यार करती है, पैसे लेती है? नहीं लेती ना, प्राइसलेस है. ऐसी ये चीज़ भी प्राइसलेस है. इसको ट्राई करके देखो, वेबसाइट पे जाओ, कोई डाउट हो हमसे पूछो. इस वेबसाइट पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. दिल्ली में 80+ सेंटर्स हैं, जहाँ आप जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं. अक्रॉस द वर्ल्ड 140+ कंट्रीज में प्रैक्टिस्ड है. हम तो हिंदी इंग्लिश में, वी कैन कन्वर्स इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, राइट? आप समझ सकते, लोकल लिंगो है, किसी भाषा में बात कर सकते हैं. जो रशिया में है, इराक में है, ईरान में है, दे आर प्रैक्टिसिंग इट. कैसे फील कर रहे हैं? जो हमने बोला वाइब्रेशंस, बैलेंस, उनको मटेरियल बेनिफिट्स महसूस हो रहे हैं. आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर लो, सेटिस्फैक्शन आना बहुत ज़रूरी है. आज आईफोन 13 है, 14 चाहिए, 15 चाहिए, चलते रहेगा ये. वो अपना प्रोडक्ट बनाते रहेंगे, आप भी फंसे रहोगे लाइन में. एक बार सेटिस्फैक्शन आ गई, हाँ यार दिस इज थिंग राइट फॉर मी, तब यू विल एंजॉय दैट थिंग एंड स्टे फोकस्ड and stay on the path of spirituality as well as this journey of life. Thank you. Thank you for giving me this platform and sharing my experience with you all. Like you all, I had no focus. I just studied for the sake of my parents. I got degrees, but that doesn't mean I had a focus to earn money, to live for myself, to become something. But I don't know, after getting married, I got this realization of Sahaj Yoga, and my path got cleared. I don't know, everything was effortless. Without thinking that I want this, I want that, everything I got effortlessly, without thinking कि मुझे ये चाहिए. So I would just suggest you all कि just keep a true desire that you want your realization. Everything will be planned for you. You have to do nothing, you don't have to make any efforts. Things will be done on its own. And one more thing I want to share with you. I had no plans to do PhD. I'm a doctorate in molecular genetics. I had no plans to do anything as a research scientist. I don't know how things happened, how things got into all this field. And my whole path was clear without making much efforts for it. After marriage, I got into my master's. I completed my master's. I had my baby. Then again, I did my PhD, leaving my 3 months baby at home. But you can imagine the life hurdles which we have as a married woman, as a mother, as a daughter-in-law. But you don't know how things happen. Everybody support you. You can go out of the house. You can work for yourself. And all this is just effortless. I would only request you all, take it seriously, just keep a true desire to get into Sahaj Yoga and practice meditation. And you will not even come to know where you land up, and with very high post and high degrees. And everything will be taken care of. Your families, your kids, your parents, everything will be taken care of. That's it. Thank you all. Jai Shri Mata Ji. अगर आपको सहयोगा सीखना है तो हम आपको ऐसे नहीं कहेंगे कि आप उसको बिलीव करो या आप उसके लिए निगेटिव या पॉजिटिव अप्रोच दो. हम आपको बस इतना कहना चाहते हैं कि आप उसको ट्राई करो, क्योंकि जब जो हम बिहेव कर रहे हैं वो हम अपने आप को ही बता रहे हैं कि हम क्या हैं.
हम लोगों को नहीं बता रहे कि हम क्या है। और हमें अगर अपने अंदर से शांत होना है, हर एक चक्रास को हील करना है, अपने अंदर के पीस को फील करना है, तो हमें सहयोगा करना होगा। और आपको ये चीज़ पता होंगी होपफुली कि अपना जो माइंड है उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है। हमें डॉक्टर सेडेटिव्स देते हैं और सुला देते हैं। जब हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कोई लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उनके लिए केवल सेडेटिव्स है। देयर इज नो एक्सरसाइज, नो रिलीफ। हम अगर मेडिटेशन करते हैं तभी हमारे माइंड को एक्सरसाइज मिलता है, तभी हम शांत होते हैं और तभी हम प्रॉपर डिसीजंस लेके ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम अंदर से ही शांत नहीं है तो हम डिसीजन क्या लेंगे? हमारे सामने 4 सिचुएशंस खड़े होंगे, हम चारों सिचुएशन में कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हमें अंदर से शांत होना है, हमें मेडिटेशन करना है। I thank Dr. Soumya Hinduja for this wonderful workshop, which is absolutely free of cost for all the students. And I am very thankful that you have told us all that is there within us, but we were not aware of it. So the students, I think so, most of us जो नहीं भी ध्यान दे रहे हैं, but when you have listened, जब आपने सुना भी है, वो आपके अंदर गया है और लाइफ में कभी ना कभी आपका ज़रूर काम करेगा। So I think so on the behalf of Ashtavakra Institute of Rehabilitation Sciences and Research, I would like to thank you, ma'am, first of all, Dr. Soumya Hinduja, Mr. Vinayak Narang, who shared his valuable experience with us, and he told us what were the hurdles in his life and how, yeah, I could understand. You told me, I really could understand that moving from one part and going to altogether a different branch, that cyber, that is what you are there at present, is altogether a different field. And you were able to focus yourself, you are able to streamline what energies you have. That is a great experience. So I'm thankful for you that you shared your experiences with us. And moreover, now you have already done MBA in IT Business Management, and now you're running a cyber city consultant at US also. So that's a great opening for you, and we congratulate for that. Secondly, I would also like to thank Dr. Seerat Talwar, who shared her experience that she faced a lot of problems in her life, being a mother also, being a daughter-in-law, you told us, but you were able to focus to the meditation and give a new life to yourself. So yes, हम में से कोई ना कोई यहाँ ज़रूर बैठा है जिसके लाइफ में hurdles आते हैं, और हम भी अपने आपके experience से we will also share that thus. And thirdly, we again, Miss Manjri ma'am was there, she told us, and now she's doing her MA Economics, and former teacher, you were there. You were able to crack your CET examination, for which you were not well versed first of all, but being focused gave you that direction and you became a great achiever. Okay, so on behalf of, once again, I thank all the members of the team over there, present over there.